Bande Mataram, dear students, once again most welcome to my channel Math and Science with Chandan sir. Today's topic for the standard 10th of subject science, redox reaction, reduction and oxidation. Let's start. Oxidation and reduction. There are some points related to oxidation and reduction. First point for the oxidation is adding of oxygen is called oxidation. In other way, also you can say removal of hydrogen is also known as oxidation. Vice versa, reduction, it means adding of hydrogen is known as reduction and removal of oxygen is known as reduction. Combinedly, oxidation and reduction is known as redox reaction. यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है. नेम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा. ठीक है, इसी का ठीक उल्टा, जस्ट अपोजिट इन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा. इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. टेक एन एग्जाम्पल. व्हेन कॉपर इज बर्न और हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट कॉपर ऑक्साइड. हियर यू कैन सी ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर. दैट्स व्हाई this reaction is known as oxidation. Here you see when copper oxide reacts with hydrogen gas, it gives us copper and water. In this reaction, hydrogen is added to the copper. That's why an oxygen is removed. Oxygen is removed. That's why this is called reduction. In this equation also you can see in hydrogen oxygen is added. That's why this equation is also known as oxidation. Each and every reaction, oxidation and reduction both are present, both occurs, and that's why it is called redox reaction. Combinedly, redox, red from reduction and ox from oxidation, combinedly it is known as a redox reaction. Take another example. Here you can see copper oxide and hydrogen gives us copper and water. In this reaction, only we have to think about copper. So copper oxide becomes copper. Oxygen has been removed. The oxygen has been removed. It means removal of oxygen is known as reduction. That's why this reaction is known as reduction. Whereas in this equation you can see oxygen is added in hydrogen. That's why this reaction is known as oxidation. And combinedly the whole equation is known as redox reaction. Here also you can see ZnO, zinc oxide, reacts with carbon, gives us zinc and carbon monoxide. In this condition, here you can see oxygen has been removed to give zinc. That's why this reaction is known as reduction, removal of oxygen. That's why it is reduction. In the other case, here adding of oxygen, that's why it is known as oxidation. And combinedly we can say that this is redox reaction. In
this equation here, MnO2 it means manganese and HCl it means Cl. आप कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए जाओ तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा देना है, उसके अलावा जो एलिमेंट बचेगा उस पर ध्यान देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बचता है, मैग्नीज बचता है और क्लोरीन बचता है। इसके साथ देखो क्या हुआ, मैग्नीज वाला इधर कौन सा है, ये मैग्नीज क्लोराइड, और इधर आपका क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो आप देखो कि इस मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इन दोनों के साथ क्या हुआ है। तो मैग्नीज ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यू कैन सी, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ या ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ या हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब सेकंड आपका क्या बचा, क्लोरीन। तो इधर क्लोरीन कहाँ है, यहाँ है। इस वाटर से अब लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लोरीन से लेना देना है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये चीज। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Combinedly we can say that this is an example of redox reaction. यहाँ पे एक और आता है टॉपिक, reducing agent and oxidizing agent। हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट, जो मैटर आपका ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन में ले लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर आर टू रिएक्टेंट्स इन विच मैग्नीज ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू मैग्नीज क्लोराइड। यानी इसमें मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है मैग्नीज क्लोराइड, और HCl जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, क्लोरीन। अब आपसे कोई पूछे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पहचानना है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आपको रिएक्टेंट साइड मिलेगा, प्रोडक्ट साइड नहीं मिलेगा। रिएक्टेंट साइड से आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको देखना है उल्टा, वाइस वर्सा याद रखना कि अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढने के लिए कहा तो आपको देखना है कि रिडक्शन किसका हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढने के लिए कहा तो क्या देखेंगे, रिडक्शन किसका हुआ। तो आप देख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको बोले कि रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढो तो आप देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो इस HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जो जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे किसको, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, विच हेल्प्स इन रिडक्शन। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज रिड्यूस्ड,
अब फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के लिए अगर आपसे पूछे विच इज रिड्यूस, तो योर आंसर इज मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, तो योर आंसर इज HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ इट इज आस्क्ड which is the oxidizing agent, your answer is manganese oxide is an oxidizing agent. For HCl you can say it is a reducing agent. That's all from redox reaction. आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।